कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करा नहीं होता एंड हिज 60-70% गुड फ्लैट्स आर सोल्ड। आज वो जर्नी 2 BHK से 70 लाख से आज हम लोग करीब 15-16 करोड़ के अपार्टमेंट्स में भी डील किए हुए हैं। तो पहले आप कुछ खरीद लीजिए इधर, वरना तो ट्रेन निकल जाएगी। Hello and welcome to our new podcast channel, where I'm going to invite Mr. Nitin Pandey, who is having a very good rapport and renowned name in front of Pune real estate luxurious market. आइए दोस्तों, नितिन से खुद जानते हैं कि उनकी जो 9 साल की वर्किंग जर्नी रही है रियल एस्टेट मार्केट में एट पुणे कैसी रही है, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किया है और कैसे अप्स एंड डाउन्स को कैसे उन्होंने आगे ओवरकम करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। So we are welcoming to the founder of Aura Excellente Real Infracom Private Limited. Thank you, Naveen ji. Thank you for inviting me with your podcast channel. I will definitely be introducing myself. My name is Nitin Pandey. I am working as a luxury realtor in Pune market. We are one of the superb luxury realtors working in whole Pune, where we deal with personal row houses, penthouses, big size 3-bed, 4-beds, and commercial showrooms, shops, floor plates, etc. etc. नितिन जी, आपका करीब देखा जाए, आपने पहले बताया था कि आपकी यहाँ की जर्नी 9 साल की है यहाँ पुणे रियल एस्टेट लग्जूरियस मार्केट में। तो मैं अगर आपको एक ब्रीफ देना चाहूँ कि आप अपने एक लाइफ जर्नी को इनिशिएट करें तो कुछ उस पे फोकस करेंगे। हाँ, so Naveen ji, I have been brought up in, you can say I've been born and brought up in Chhattisgarh, Bhilai. It's a steel plant location, and I have done my schooling in DAV Public School. Then I have joined as a mechanical engineer in Shankara College, and now I've come to Pune, and since 2016 I'm doing the same work in Pune real estate market. I'm one of the consultant who helps people to buy their dream homes, and definitely to give a good return on investment. We make their investment into luxury commercial shops, showrooms, offices, etc. नितिन जी, एक DAV स्कूल का स्टूडेंट विथ मैकेनिकल बैकग्राउंड, हाउ कम यू जस्ट रीच्ड पुणे और आपने रियल एस्टेट में कैसे एंट्री किया? इसके मतलब ये थोड़ा सा अलग ही सेगमेंट जाता है। So I was sitting in my 4th year, and एक चीज तो sure था that I won't be carrying myself in mechanical engineering. So I was looking for opportunities. Then I looked for places where to work in. मुझे environment थोड़ा सा अच्छा चाहिए था, because when I've been in Chhattisgarh, I feel कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कम है। There is no समंदर, there is no पहाड़। इसलिए मैं पुणे आया, and I make sure कि मैंने गूगल में सर्च किया। Top 3 locations में पुणे है। I have already been to Bangalore. It's a very crowdy city, okay. So I avoided that. मैं पुणे पहुंचा, and then I started as a intern in one of the marketing agencies, same real estate agencies, and then after that I started my own. Okay. नितिन जी, आपने एक बार बताई थी कि when you were in 12th, you got selected at Air Force, some kind of government job. You left that also. Can you yes, say that story? थोड़ा सा at that moment of time I was not aware कि what opportunity did I got. Okay. So I have been selected in Air Force. I have almost done as a, you can say, 2nd, 3rd round निकाल लिए थे. I have been selected in medical. मैंने already 6.28 seconds में वो complete किया था 1 mile. So it was a good record, and my parents forced कि आप वहाँ join कीजिए. Okay. But at that moment of time I thought कि नहीं, this is not my right now portfolio. I don't want to put my time in any kind of job. So okay. इसीलिए मैंने engineering prefer की. Then I have been here, and personally अगर आप मेरे को पूछें तो I have a very little experience, little interest in working for Indian government. Directly I can help them with my tax revenues, but I don't directly want to work today as into the government. Okay, that's great. You're having a great story with that. ठीक है नितिन जी, बट इसके साथ साथ आपने फिर इंजीनियरिंग को चूज किया, वो भी मैकेनिकल। So उस समय सबसे ज्यादा हॉट जो चल रहा था वो इंजीनियरिंग था। आज देखें तो MBA, these are going very hot, but for me there is one degree which is sufficient. उस डिग्री ने मुझे ये सिखाया कि एक डिग्री लेके आप अपने
काम को जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जैसे मुझे अपने काम में इंटरेस्ट है, आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस व्हाट दे वांट, आई लाइक टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, आई लाइक टू बैंक देम, आई लाइक टू एनकैश देयर थिंग्स. सो मैं थोड़ा सा आई एम इनटू अ डे टू डे लाइफ एंड आई लाइक माय वर्क. सो आई that's why I did not choose an Air Force, I did not choose an mechanical engineering. वहाँ I believe कि I would have gone into a simple you can say work frame. अभी मैं क्या, I am open, I am not bounded to any city, I am not bounded to any time. I come at my own time, I leave at my own time. There is zero work life balance because I love my work. That's why I don't care about these things. So this is why I have just you can say improvised myself into doing this. यही मेरी छोटी सी जर्नी का एक यू कैन से समरी है. ओके, दैट्स ग्रेट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी. एक गवर्नमेंट जॉब को आपने लेफ्ट किया, फिर इंजीनियरिंग में भी, उसके बाद आप पुणे मार्केट, रियल एस्टेट, दैट्स ग्रेट. एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे. आप पुणे एंट्री करते हैं और रियल एस्टेट इनिशिएट करते हैं, फिर ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे. आज आप कहते हैं कि आज आप लग्जरियस जो सेगमेंट है, पुणे की लग्जरी सेगमेंट, उसको फॉलो कर रहे हैं, और इसकी जर्नी कैसी है? So when I started in one of the companies of Pune, so there was a challenge like कि I had a good boss but he was not supportive. Okay. Then I thought कि let's be a good boss and be supportive. Okay. So I started like that and आपको मैं बताऊं नवीन जी कि I started with selling a 2 BHK of 70 lakh in Wakad, in one of the top developers of Pune in 2016. Okay. आज वो जर्नी 2 BHK से 70 लाख से आज हम लोग करीब 15-16 करोड़ के अपार्टमेंट्स में भी डील किए हुए हैं. Okay. And we have an average of selling 4-5 CR apartments very frequently. लग्जरी का डेफिनेशन क्या है आपके? So when we talk about luxury, luxury is all about size. Okay. Luxury is all about the services. Luxury is all about the amenities. Luxury is all about the lifestyle. So अगर मैं पूना के लग्जरी डेवलपर्स की बात करता हूँ, so आप अपने घर के अंदर घुसते हैं, you get that feeling कि I have a good size of bedroom, I have a good size of living dining, spacious kitchens for ladies because ladies are very interested into that. And then what interiors the developer is giving, like false ceiling with cove lightings, like marbles, and like many more things which you call luxury. And when I say luxury, it comes with 100% security and it's into a gated society where you can operate everything via camera, via your phone, and your family is safe at the end. Okay. So when you talk about luxury, luxury is a lifestyle and luxury is not having any kind of headache कि आपके बगल वाली से नोक झोंक हो रही है, जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स है. उससे एक थोड़ा सा ऊपर लग्जरी वाले एवरीवन इज गोइंग गुड, दे आर हैविंग गुड टाइम. At Diwali they celebrate, in Dussehra they celebrate, in you can say any kind of festivals, they all come up together and they celebrate together. That is what is called luxury. और इसमें टिकट साइज अगर टिकट साइज देखें तो आज की डेट में पुणे में 2 करोड़ से ऊपर 3 बेड और 3-3.5 करोड़ के ऊपर 4 बेड is a starting of luxury. Until 14-15 CR you get a penthouse, you get a big size duplexes, you get a very huge size row houses. So this is how we define a luxury and an ultra luxury apartment. Okay. Yes. नितिन जी, अब आते हैं बिजनेस पे. अब यू हैव स्टार्टेड Aura Excelente in 2021 if I'm not wrong. 20. Yes. And you are having experience of 9 years plus in Pune real estate market. How you see that Pune has changed from that day to till date, and what are the challenges you have faced while starting this Aura Excelente? So there Naveen ji, कोई ऐसा challenge तो है नहीं, but I will tell you that my first company was Wish to Will. Okay. So it was also having a tagline, "You wish, we will," and that was a proprietor firm. Now in 2020 we faced a heavy COVID scenario. It was all worse to everyone. So that business got gone. Then we started fresh. So I have a partner. We met in an office. We have subleased an office. We make sure that we pay half our rents. Then we collaborated. We created this Aura Excelente. And Aura itself means a positive vibe.
So my team, when we go to any kind of place, any kind of developer, we meet any kind of person, that positive vibe is from my team. That comes from my team, you can say. And Aura itself means a union of reality advisors. Okay. So we are a union of reality advisors having a positive intent with while we meet our clients. And this is how I started, and you can say there is no challenge to start this company. Everyone starts like this. It's not, you can say ki the challenge is to be starting. The challenge is to let it happen till the time your life is The there. survival you are saying, you can say कि चालू करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, चलाते रहना बहुत मुश्किल है. So वो भी पुणे मार्केट में नहीं, कोई भी मार्केट में कोई भी काम हो, अगर आप चालू कर रहे हो तो बहुत इजी है वो काम. 10-12 हजार रुपए में लाइसेंस आते हैं, बट वो चलाते रहना वो बहुत मुश्किल है. और वो उसको आपको डेली अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, आपको खुद एंथुसियास्ट रहना पड़ेगा. यू कैन नॉट लीव इट ऑन योर एम्प्लॉइज. यू हैव टू बी योरसेल्फ very confident, very boosted up, very charged up, and very aggressive. And the same time, be very polite to your customer. And there is one word जिससे धंधा नहीं होता. धंधे में सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट. सो ट्रस्ट जीतना और ट्रस्ट कमाना बहुत 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 टाइम टेकिंग प्रोसेस है. सबसे बड़ी बात है. और अगर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो यू आर हैविंग अ गुड ट्रस्ट बिल्डअप. हाँ, मेरे क्लाइंट्स जितने भी हैं, देर आर ऑल एलिट क्लाइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 70 lakhs to 7 CR 17 CR. सारे एलिट कस्टमर्स हैं. दे हैव अ ट्रस्ट ऑन मी. मैंने उनको जो भी चीज बेची है, दैट इज हैविंग वैल्यू फॉर मनी, दैट इज हैविंग फ्यूचर एप्रिसिएशन. और जो भी चीज बेची है, आप मेरे को शब्दों में बोलूं तो चोखा माल बेचा है, टकाटक. बहुत खूब, सही है. इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपकी यूएसपी क्या है. अगर आपके इस पूरे बिजनेस को मैं अगर देखूं, आपने ऑरा बताया, गुड वाइब, पॉजिटिव वाइब, बट व्हाट अबाउट द यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट? So we are, Naveen ji, we are into dream selling. Okay. Yes, we don't sell majorly, we don't sell the properties which is ready. Because market is so much challenging कि builder project launch करा नहीं होता and his 60-70% good flats are sold. Okay. So my USP and my team's USP, you can say precisely, कि हम लोग स्टार्ट में, लॉन्च के भी प्री लॉन्च में हम लोग घुस के अपने क्लाइंट्स को प्राइसिंग दिलाते हैं, इन्वेंट्री दिलाते हैं, वास्तु शास्त्र हमारी पूरी टीम को आता है. सो वी आर इनटू वेरी डेप्थ. एंड अगेन नवीन जी, किसी के पास भी आप जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते. एवरी टॉम, डिक एंड हैरी इन पूना इज अ डेवलपर नाउ. सो द ब्रांड्स लेगेसी इज इंपॉर्टेंट. उसने पास्ट रिकॉर्ड्स में क्या प्रोडक्ट डिलीवर किया है, अच्छा, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, उसकी एमिनिटीज डिलीवरी कितनी प्रॉमिसेबल है. ओके. और बाकी भी चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं कि उसका पेपर वर्क है कितना, कोई लिटिगेशन तो नहीं है. तो वी एनालाइज दीज स्टफ्स एंड we make sure कि when we work with a developer, we are not even only working for him, we are working for our clientele as well. Okay. So we do these kind of paperwork, you can say back-end processes, we do every due diligence, and then we start You are selling saying that or marketing that product. You are not directly into the selling process. हाँ, we are making sure कि हम खुद पूरा समझ के आए, then we brief to the client. Okay. So that's the It's a unique kind selling. of problem solving situation for. Yes, you can say. देखिए नवीन जी, किसी को 2-2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 1 लाख रुपए भी हार्ड एंड मनी है उसका. सही बात है. अगर हार्ड एंड मनी है, वी आर दी कंसल्टेंट्स टू पुट. और हर टाइम नवीन जी, हर टाइम डिफरेंट होता है. हाँ. आज जो डेवलपर 100 रुपए का भाव बेच रहा है, हाँ. वो आज से 2 साल बाद 500 में बेच रहा होगा. हमारा टाइम क्या है, हमारा क्या है, कंसल्टेंट का काम. एक एज ए कंसल्टेंट का काम क्या है, उस मोमेंट पे, उस समय पे जो अच्छा डेवलपर है, उसमें उस क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट करवाना है. और एंड यूजर क्लाइंट लोग के लिए एक सपना होता है घर. 25-25 साल, 20-20 साल लगते हैं उनको वो लोन्स, EMIs पटाने में. और किसी को आप गलत चीज बेच के इस मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर सकते. देयर आर डेवलपर्स इन द मार्केट जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज बेचने में ध्यान देते हैं, बनाने में नहीं.
हम लोग वो डेवलपर्स के साथ काम नहीं करते हैं, भले ही वो हमको कोई भी सर्विस फीस दे, 10% भी दे, हम नहीं काम करते। हम उनके साथ काम करते हैं जिनका लिटरली ट्रैक रिकॉर्ड और जो मैंने भी चीजें बोली वो सब एकदम परफेक्ट होता है। देन वी स्टार्ट 19-20 होता है नवीन जी, रियल एस्टेट मार्केट है, बट वी मेक श्योर कि 19-20 में भी हम वो डेवलपर्स निकालें जो अच्छा डिलीवरी दिए हैं और जो प्रॉमिसेबल है, जिसपे आप आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। नॉर्मली वो आग बंद करने का प्रोसेस क्लाइंट का रहता है और ट्रस्ट वो हम पे करते हैं, और डेवलपर का माल अपने आप बिकता है। 2016 और 2024 आपने एक लंबा समय देखा यहाँ पर। आपने इस बीच में हम बहुत सारे सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे आपने, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे टेकल किया? देखिए 2016-17 मोदी जी आए, नमस्ते बोले, 500,000 का नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आई, फिर बहुत सारी चीजें उस समय थोड़ा सा एक हमारा रियल एस्टेट एक करेक्शन लेता है। अच्छा। फिर इट गॉट अ वेरी गुड राइज। 2020 में कोविड आया। कोविड वाज अ यू कैन से अपॉर्चुनिटी, जिनको बाय करना था उन्होंने किया, बिकॉज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम डेवलपर्स ने प्राइस होल्ड करके रखा था। गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टैम्प ड्यूटी वेवियर्स थे, बहुत सारे काइंड ऑफ बैंकिंग सपोर्ट्स भी थे। उसके बाद आज 2024 है। सो अगर नवीन जी उस समय मैंने कोई अपार्टमेंट खरीदा होता 2016 में या किसी को बेचा है 2016 में, तो 2020 तक ही वो डबल हो गया था। और जिसको 2020 में बेचा है वो आज की डेट में वो एटलीस्ट 2.5-3x टाइम्स वो हो चुका है प्राइस। ये पूना मार्केट का ब्यूटी है। एंड इस ब्यूटी में आप समझ लीजिए 20-30% डेवलपर्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, 10-20% हैं जो ओके काम करते हैं, और बाकी 50% के साथ हम नहीं काम करते। क्या बात है। नितिन जी, एक और सवाल, जैसा आपने बताया कि आप एज अ कंसल्टेंट हैं, तो वो कंसल्टेंसी वो कंसल्टेंसी का आपके नजर में डेफिनेशन क्या है? कि कंसल्टेंसी मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत है आपके जैसे, ठीक है, तो व्हाई पीपल शुड बाय योर कंसल्टेंसी? Okay, it means you are saying that why Aura? Why Aura? Why choose Aura and Aura teammates? So नवीन जी, जब मैं आपको बता रहा था अभी बीच में, तो मैं आपको बताया कि हम लोग पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं बिल्डर का ब्रांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई लोग अपने ब्रांड का रेपुटेशन डाउन नहीं जाने के लिए आउट ऑफ द वे जाके चीजें करके देते हैं ऑन टाइम। दूसरा, किस लोकेशन में प्रोडक्ट ला रहा है, लोकेशन का फ्यूचर क्या है, कितना पास उसके मेट्रो है, कितना पास उसके एयरपोर्ट है, कितना पास उसके स्टेशन है, कितने पास उसके पब्लिक फैसिलिटीज है, जो बेसिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, और उसका फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या है। थर्ड, वी मेक श्योर कि प्रोजेक्ट कैसा है, उसमें एमिनिटीज क्या है, बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक तो नहीं है, बहुत ज्यादा क्राउडेड तो नहीं है, एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है, 2 ही अपार्टमेंट है, 4 अपार्टमेंट है, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरनल एमिनिटीज की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, कितना हाइट दे रहा है डेवलपर, मार्केट से छोटा तो नहीं है उसका हाइट, मार्केट से बहुत ऊपर हाइट है तो अच्छी बात है, बहुत कम हाइट है तो बहुत बुरी बात है। उसके बाद हम लोग उनके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं कि लोग किचन में क्या करके दे रहे हैं, फॉल सीलिंग में क्या करके दे रहे हैं, जो ग्लासेस आज की डेट में लगा रहे हैं, डबल ग्लेज्ड यूनिट, वो कैसे हैं। सो बहुत डिटेलिंग के बाद हम लोग उनके चार्जेस पे आते हैं कि व्हाट दे चार्ज, आर दे नॉट चार्जिंग वेरी हाई, क्योंकि ब्रांड का प्रीमियम भी देना पड़ता है, बट वी मेक श्योर कि थिंग्स वर्क वेरी गुड व्हेन इट इज अ लॉन्च। उसके बाद हम लोग पोजीशन पे बात करते हैं। कई डेवलपर 2000 लेट सपोज आज से 4 साल बाद का पोजीशन बोलते हैं, बट पेपर पे 7 साल लिखे रहते हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखना पड़ता है कि इन्होंने पहले जो अपना कमिटमेंट ऑनर किया है कि नहीं किया है। सो ये सब चीजें हम लोग एकदम शार्पली एकदम चीजें अपनी टीम को ब्रीफ करते हैं, देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। You are having a good number of checklist. Yes. And after that, all those tick mark only you are going to. नवीन जी, अगर आप मेरे से पूछें, it's not a good number of checklist. We can say it's a complete checklist. Okay. Yes. Then we start briefing की our team कि ये डेवलपर का ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, आपको वहाँ काम करना है। अच्छा। Yes. नितिन जी, आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। मैं अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन करूं कि एट प्रेजेंट सिचुएशन, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे, सिचुएशन भी देखा, पुणे मार्केट को भी हम आपके थ्रू समझ रहे हैं। आज की प्रेजेंट सिचुएशन और चैलेंजेस, आप उसको कुछ पॉइंटर्स में अगर डिनोट करें या थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए नवीन जी, रियल एस्टेट ऐसे मार्केट तो एकदम ऐसा लगता है लोगों को कि ऐसा है कि यार तुरंत गए,
बढ़िया कमीशन कमाया और निकल गए। हाँ मतलब But अगर ये- इस साइड से देखा जाए हाँ, ये क्या है, वो यू कैन से ना कि दूर से एवरीथिंग यू लुक इज ग्रीन, बट ऐसा है नहीं। सो आज ऑल के challenges- ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हाँ, यू कैन से लाइक दैट। सो आज के चैलेंजेस ऐसे हैं नवीन जी कि आज जो पेपर वर्क है डेवलपर का, उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में जाना पड़ता है, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए रहता है सेंट्रल से। अच्छा। उसको महाराष्ट्र रेरा से एक रेरा नंबर आता है, सो इट्स अ क्लियरेंस। सो उसमें डेवलपर्स को कॉर्पोरेशंस में, सेंट्रल में एटलीस्ट 3 से 6 महीने लगते हैं। ओके। ठीक है। एंड उसके बाद हमको उस मोमेंट पे भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमको अच्छा। उस टाइम पे भी एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद यू कैन से पेपर वर्क व्हाट आई सेड। उसके बाद आप बोल सकते हो कि सैलरीज हैं जो ऑन टाइम जानी चाहिए अपनी टीममेट्स को। और उसके बाद आप बोल सकते हो बेसिक ऑफिस एक्सपेंसेस है, जहां पे हम लोग ने लीज करके रखे हैं यूनिट्स, क्योंकि एवरी रियल एस्टेट एजेंट कैन नॉट बाय इन ऑफिस एंड देन ही कैन स्टार्ट। सो दैट बेसिक थिंग्स, बेसिक स्टफ्स। उसके बाद भी जब हम बिल जनरेट करते हैं आफ्टर दीज ऑल प्रोसेसेस, जब उसका पेपर वर्क आता है, क्लाइंट एग्रीमेंट करता है, बुकिंग करता है, एग्रीमेंट करता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, उसके बाद जब हम बिल देते हैं तो हमको एडवांस जीएसटी पे करना पड़ता है जीएसटी डिपार्टमेंट को। और एडवांस जीएसटी अगर हम वो नहीं पे करते हैं तो 1.5% इज द इंटरेस्ट, इज द पेनाल्टी व्हाट वी हैव टू पे एवरी मंथ और मंथली। और डेवलपर्स, there are hardly few developers, I don't want to name them, but they are very good in payment. They process the payment within 7 days, in a day even. Okay. And there are developers who are giants, but उनका payments में 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने ये सब लग जाते हैं। So for a transaction, if you say एक average अगर आप एक transaction पकड़ें तो it completes a 1 year cycle, उससे भी ऊपर जाता है। सिंगल ट्रांजैक्शन। माय गॉड। सो ये सब चैलेंजेस है। और अगेन आज की डेट में क्या है, देयर आर यंग जनरेशंस हु ऑल वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स। सो सीखते कम है और घुस जाते हैं और पिट जाते हैं और फिर वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग उनको सिखाने में ध्यान देते हैं, उन लोग अपना नया दुकान खोलने में ध्यान देते हैं। ये सब बेसिक चैलेंजेस हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पिटिटर्स का हमको कोई चैलेंज नहीं है। 2000 इन्वेंट्री एक बार में लॉन्च होती है पूना मार्केट में 1-1.5-2 महीने में। हमारा टारगेट 20 से 25 यूनिट रहता है। सो कोई कॉम्पिटिटर से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मार्केटिंग एक्सपेंसेस कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, फेक इंक्वायरीज, यूजलेस इंक्वायरीज करके, बट ऐसा कोई चैलेंज है नहीं। आज की डेट में जो 2020 के पहले का मार्केट था उसमें मार्केटिंग का एक्सपेंस था 2-3 लाख रुपए फॉर एन ईयर, आज वो 5 से 6 लाख फॉर अ मंथ हो गया है। सो ये सब चीजें हैं जो नवीन जी अगर आप देखें ना तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और अगर आप देखें तो कस्टमर भी आज की डेट में, क्लाइंट भी, मेरे क्लाइंट के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आज की डेट में कुछ क्लाइंटल भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि हम आईटी में या ऑटोमोबाइल में या कोई भी इंडस्ट्री में काम करके हम ही खुद घर ढूंढ लेंगे और हम ही खुद ले लेंगे। और वो चैलेंज, उनको क्या लगता है कि वो कमीशन बचा लेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है नवीन जी। हमको पता है बिल्डर का लास्ट रेट क्या है, हम लोग उसको उससे भी नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर नेगोशिएशन। और वो क्लाइंट को तब समझ में आता है जब उसके साथ कोई अच्छा कंसल्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस बिजनेस भी चलता है। हाँ, रेफरेंस चलता है नवीन जी, लेकिन यू नेवर नो ना कि व्हाट इज द लास्ट प्राइस ऑफ अ डेवलपर। 100 रुपए का कोट है, 90 रुपए की डील होनी चाहिए। वो 95 में खुश हो जाता है सोच के कि 5 रुपए में मैंने वेव ऑफ कराया। अगर एज अ कंसल्टेंट देखे, मुझे पता है कि वो 90 में जाने वाला है, सो आई विल ट्राई टू पुट डेवलपर इन 89 और मैं प्रपोजल दूंगा 88 का, भले ही वो डील 90 में होने वाली है। सो डेवलपर विल कम डाउन दैट वे, बट वो क्लाइंट क्या होगा उसको पता ही नहीं है मार्जिन क्या है। नंबर ऑफ सेल्स। यस, वी आर इनटू वॉल्यूम। 90% बिजनेस इस पूना मार्केट में हमारे जैसे पार्टनर्स के थ्रू होता है, जो डे इन डे आउट कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है उनके जीवन में। जब क्लाइंट आ रहा है उनको तब केटर करना है, जब उसकी क्वेरी आ रही है तब उसको सिचुएशनल हेल्प करनी है कि सर ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। तो वो सब चीजें हैं नवीन जी जिसको हमको ना बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और एक कंसल्टेंट का डे इन डे आउट वर्क ही होता है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है। आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते कि 5 दिन आप आईटी में काम कर लिए, 2 दिन आप रियल एस्टेट में कर लिए। लोगों को देखा है करते हैं लोग वर्क करते हुए पार्ट टाइम करते हैं। देखिए नवीन जी, मैं लंबा करने की बात कर रहा हूँ काम। 2 या 3 महीने काम करना है तो आप ये कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम
यहाँ जंप करके हम इससे कमीशन कमा लेते हैं, फिर वो पेपर वर्क और बाकी चीजों के चक्कर में वापस चले जाते हैं और उनको फिर वो वाली नौकरी भी नहीं मिलती जो छोड़ के आते रहे। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अगर मैं एक और सवाल करूं कि कंपनी का मिशन और विजन क्या है? आज हमारा विजन और मिशन एकदम क्लियर है। वी वांट टू हैव अ क्वालिटी टीम फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑरा की कोई भी टीम में क्वालिटी नहीं है, सो आप ऑरा में ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हो। ओके, 2 महीना 3 महीना। फॉर ऑल दोज हु वांट टू जॉइन ऑरा, दिस इज द मैसेज। यस, सो नहीं, हम लोग खुद ही ट्रेनिंग कराते हैं। ओके, हाँ, पूरी ट्रेनिंग हम ही देते हैं। हम लोग मतलब पर्सनली अगर आप मेरे से बताएं तो मैंने पर्सनली 100+ प्लेसमेंट्स करवाए हैं यहाँ पे। बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों को इंटर्नशिप दी है। हम लोग एक एक बच्चे को ट्रेन करते हैं टू मेक श्योर, ठीक है वो कोई भी ज्वाइन करे कंपनी बाद में, बट अगर आप इंटर्नशिप में आए हो तो एटलीस्ट मेरे से आप सेल्स सीख के जाओ। और सेल्स हम लोग चिपकाने वाला काम नहीं करते हैं, हम लोग पूरा इन एंड आउट समझते हैं। भले आपके पास 2 या 3 क्लाइंट ही हो पूरे इंटर्नशिप में, बट आप उनके पूरे डिटेलिंग लेके उनके पास ऑप्शंस लेके जाओ, उनको प्रोज एंड कॉन्स हर चीज का बताओ। चांद में भी दाग है नवीन जी, तो आपको पूरा समझाना पड़ता है कि चांद में दाग है तो क्यों है, और चांद अच्छा है तो क्यों है। तो ये सब चीजें हमको ना बहुत डीपली समझानी पड़ती है लोगों को। और अगर आज आप देख लीजिए क्या बता रहे थे आपकी मिशन और विजन, हमको पैन इंडिया में लग्जरी रियल्टर्स के नाम से फेमस होना है। वी विल वर्क एंड वी वांट टू वर्क इन वॉल्यूम इन मल्टीपल सिटीज, जिसमें आप हैदराबाद देख लीजिए, बैंगलोर देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, गुड़गांव, दिल्ली देख लीजिए, ये सब मार्केट में, एंड डेफिनेटली टियर 2 सिटीज लाइक इंदौर, रायपुर, और अपना बहुत सारी सिटीज हैं जो इंडिया में, जहाँ पे लखनऊ हो गया, जहाँ पे अपना अयोध्या हो गया, जहाँ पे अपना मार्केट एस्टैब्लिश हो सकता है, लोगों के अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, और डेफिनेटली अ ड्रीम होम फॉर देम। आपने एक वर्ड यूज किया, महारेरा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या कि हमारे ऑडियंस को ये महारेरा और रेरा क्या चीज? सो महाराष्ट्र रेरा को ही महारेरा बोलते हैं। सो रेरा का डेफिनेशन है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और आज हमारे कंसल्टेंट्स के एग्जाम होते हैं। हम लाइसेंस लेते हैं, हम एग्जाम्स क्लियर करते हैं, हम एग्जाम्स की कुछ फीस भरते हैं, देन वी टेक proper license of do you have that exam? Yes, we already did. We are one of the first people who cleared the exams and now we are working. And अच्छी बात है ये। अगर आप किसी कंसल्टेंट के साथ जा रहे हैं तो उसको इन एंड आउट पता होना चाहिए, यहाँ क्या आने वाला है, वहाँ क्या आने वाला है। कई बार होती है जो रोड्स डीपी सैंक्शन में रहती है, मतलब ये रोड यहाँ से बनने वाली है, इतनी चौड़ी बनने वाली है। तो ये सब चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप क्लाइंट को फ्यूचर एप्रिसिएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे? सो ये सब चीजें बहुत डिटेलिंग है नवीन जी कंसल्टेंसी वाले मार्केट में। जो समझता है उसको पता है, जो दूर से समझता है कि हाँ 2-3 टक्के का कट है, वो उसका बहुत दिन नहीं चल पाता है, और चिपकाने वाला काम करना नहीं चाहिए। आज जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आज के डेट में महाराष्ट्र में भाजपा अपने अच्छे वोट शेयर के साथ, अपने अच्छे नंबर के साथ यहाँ सरकार बनाने को है। आप इसको अपने बिजनेस के साथ कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं अपना पर्सनल व्यू भी रखूं, यहाँ पर मैंने बिल्डर्स को डेवलप होते देखा, सबको देखा, बट जो रोड्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा मैं उतना वर्कआउट नहीं देखता हूँ। देखिए नवीन जी, महाराष्ट्र की बात करें ना तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ द टॉप 2 स्टेट्स और 3 स्टेट्स जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत फास्ट है। और बीजेपी लेड, शिवसेना लेड, एनसीपी लेड गवर्नमेंट है ये। सो आज ये जो गवर्नमेंट है ना, इट इज अ बूमर टू रियल एस्टेट, बूमर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इट्स अ डबल इंजन की सरकार। सेंट्रल में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी लेड, शिवसेना लेड, एनसीपी लेड गवर्नमेंट है। सो दीज ऑल आर वेरी स्विफ्ट इन वर्क, दे डोंट टेक मच टाइम। नितिन गडकरी जी को तो आप जानते ही हैं जी, उन्होंने इतने रोड्स बनाए ना जितने कोई बना नहीं सकता। मुझे दूसरी अपोजिशन पार्टी का कोई ऐसा कुछ कहना नहीं है, बिकॉज आई एम रियल्टर और मुझे सबके साथ काम करना रहता है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये आपका जो पेपर वर्क है उसमें टाइम नहीं लगाती है, ये फास्ट काम करती है। एंड इन्होंने धारावी जैसा प्रोडक्ट लिया है रीडेवलपमेंट के लिए। धारावी इज इंडिया टॉप मार्केट, जहाँ पे आप काम करने के लिए, चीजों को मतलब स्ट्रक्चराइज करने के लिए बहुत टाइम लगता, तो यही गवर्नमेंट कर सकती है।
ये गवर्नमेंट कर सकती है। एंड आई बिलीव कि जो भी आज की डेट में पूना का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज से 1 साल 2 साल बाद और अच्छा होगा। और जिस दिन यहाँ पे हिंजवाड़ी फेज 3 से खराडी मगरपट्टा तक मेट्रो जाएगी, देयर विल बी नो लोकेशन डिफरेंस, सब लोकेशन का प्राइस एक साथ एप्रिशिएट होगा। और रिवर साइड रोड्स बन रही है पूना में जो रिवर के पैरेलली चलने वाली है। सो आपको रिवर का ब्यूटिफिकेशन भी मिलेगा। और इन फ्यूचर एज पर द गवर्नमेंट देयर आर बोट्स विच आर कनेक्टिंग दिस सिटी। सो बहुत ही पॉजिटिव स्कोप है। एंड पर्सनली नवीन जी, पुणे का जो मार्केट है ना वो सबसे बढ़िया है। इट्स गिफ्टेड बाय गॉड। इसकी नेचर की ब्यूटी, इसके हिल्स, इसके रिवर्स और इसके आसपास का जो बेल्ट है। अगर आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि व्हाई पुणे। आपका जो कोंकण बेल्ट है वो आपकी ब्यूटिफिकेशन को और मतलब इट्स चेरी ऑन द टॉप ऑफ अ केक, यू कैन से। आइसिंग ऑन द केक। यस। तो मतलब आप क्या क्या बता रहे हैं जैसे ब्यूटिफिकेशन की बात? हाँ, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। मैंने मेट्रो बताया, रिवर साइड रोड्स बताई, पैरेलल रोड्स है। गुजरात में आपने सुना होगा साबरमती रिवर फ्रंट बना है। हाँ, वो तो वही सेम कंपनी HCP कंपनी का नाम है। उसी कंपनी ने यहाँ पे पूरा 15 इयर्स में टेंडर कंप्लीट करने का लिया है, जिसका पहला फेज चालू हो चुका है ऑलरेडी कल्याणी नगर में, औंध बानेर बालेवाड़ी में। सो आपको नेक्स्ट 15 इयर्स में ना ये प्लेस के प्राइस और ये प्लेस की यू कैन से अवेलेबिलिटी बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे मुंबई से भी ज्यादा रेट जाने वाला है। सीरियसली अभी है ऐसा सिचुएशन? हाँ, सिचुएशन वैसा ही है। वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और पूना मुंबई ग्लोबल ब्रांड्स वहाँ पे आ रहे हैं। ट्रम्प ने भी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं एंड इन फ्यूचर वो और प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्लोबल हब, कॉस्मोपॉलिटन क्राउड होने के कारण। एंड आई एम टेलिंग यू, महाराष्ट्रियन पीपल आर वेरी गुड इन पूना। देयर आर ऑल सपोर्टिव। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है ना, सो यू जस्ट टेक हेल्प फ्रॉम देम। दे विल डेफिनेटली हेल्प देम एंड दे विल take you out from that situation. So this is the beauty of people of Maharashtra. That's why हम जैसे लोग भी बाहर से आकर के पुणे में वर्क करते हैं। हाँ, definitely we want to thank everyone who are supporting us in this journey. Everyone. Seriously, you're right. नितिन जी, अब थोड़ा आपके बिजनेस के ऑपरेशंस पे आते हैं। यू आर हैविंग 2 ऑफिसेस एट बानेर एंड खराडी। Yes. आपके साथ आपके पार्टनर भी हैं। हाउ यू पीपल आर मैनेजिंग योर बिजनेस एंड व्हाट आर द वे ऑफ योर बिजनेस? सो नवीन जी, हमारा काम ना बहुत बड़ा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बट वी हैव टेकन आवर डिपार्टमेंट्स लाइक अकाउंट डिपार्टमेंट इज विद मी एंड माय टीममेट देयर इज वन पर्सन. She is one of the luxury realtors as well. So she has multiple departments. She works for majorly apartments, big size apartment, commercial showrooms, and she has a portfolio of making awareness videos for the developers. Then my partner is there. Then there is my partner taking care of you can say east office, जो खराड़ी ऑफिस है उनका पूरा केयर टेक वही करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारी एक टीममेट है जो वहां पे जो यू कैन से ऑपरेशंस को बहुत प्रिसाइजली रखती है, वो उनका काम है. So we have distributed our departments and then we are working again. Nitin, you have said earlier कि एक टाइम था जब साल में 2 से 3 लाख का एक्सपेंस आता था मार्केटिंग एंड ऑल. अब आप कह रहे हैं कि ये मंथली हो चुका है. तो हाउ यू आर गेटिंग लीड्स और मतलब आपका बिजनेस मॉडल कैसा है और यहाँ पर आप किस तरीके से वर्क करते हैं? So I am working with one of the top marketing firms which is Skyroot Marketing now. So Skyroot Marketing मेरे को पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी लीड्स दे रहे हैं एंड वी हैव फ्यू मोर कंसल्टिंग पार्टनर्स जो हमारी मदद करते हैं इस लीड जनरेशन में. एंड देखिए नवीन जी, देयर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अपार्टमेंट्स इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, इन पूना, डेफिनेटली ऑन द आउटस्कर्ट्स. सो बायर्स हैं एंड बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट मुंबई एंड पूना में जो ट्रस्ट डेवलपर्स ने क्रिएट करके रखा है, उसके कारण यहाँ पे इनफ्लो बहुत ज्यादा है. ओके. सो द रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी देयर. ओके. बस हमको वो चीजों की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी है और उनको केटर करना है. दिस इज अ वेरी इजी जॉब एंड डेफिनेटली अ वेरी अटेंटिव जॉब एट द सेम टाइम. ओके. Nitin, I just want to conclude your whole thing in your words only. Okay. So नवीन जी, अगर अब मैं कंक्लूडिंग की बात करूं तो
Personally, Aura Excelente, Mera, you can say it's our baby, and now it has a good reputation with the clientels, with the salesperson of developers, with the developers itself. Now we are heading to have few mandates और soul selling departments जहाँ पे हम पूरा builder को end to end solution देने के लिए ready है. उसके पूरे मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द पीपल लुकिंग, क्योंकि हम लोगों के पास डे इन डे आउट मिलते हैं जाते हैं, सो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और डेवलपर्स को हम लोग वो चीज प्रपोज करते हैं. डेवलपर्स जो कि स्मार्ट डेवलपर्स रहते हैं वो एक एवरेज सर्वे लेके उसके टिकट साइज में, उसके रेंज में, उसके यू कैन से इंटरनल साइजेस में वो प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उनकी एमिनिटीज उनके हिसाब से होती है और उसके बाद हमारा काम शुरू होता है बेचने का, सेलिंग का. फिर सेलिंग के बाद एग्रीमेंट होता है. एंड अगर आप मेरे को कंक्लूड करने बोलो तो इट्स अ गुड वर्क, बट इन द फर्स्ट 5 years you have to follow a boss. I follow my 2 or 3 bosses. Then I started with my own firm, and then I have concluded things. And सीखते रहना है नवीन जी, आप कभी रुक नहीं सकते, आप हमेशा ऊपर देखिए, आपको कोई ना कोई आपसे ऊपर मिलेगा और सीखते रहिए. पैसा और बाकी सब चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. एवरीवन इज वर्किंग फॉर देयर ओन टू ब्रिंग देयर ओन फूड इन देयर टेबल. सो ये चलता रहेगा. एंड आप जो भी काम करो दिल से काम करो. आप किसी को अच्छा घर दिलाओ, उसको जब चाबी मिलेगी वो आपको फोन करता है और आपको थैंक करता है, वो फीलिंग ना नवीन जी, इट्स यू कैन से इट्स नॉट कंपेयर्ड टू एनी काइंड ऑफ मनी इन दिस यूनिवर्स. सही बात. सो वो फीलिंग ही अलग है. तो सेटिस्फैक्शन नहीं आती. वो मतलब वो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है जब आप किसी क्लाइंट के घर इनॉग्रेशन में जाते हो जो कि उसको आपने ही बेचा है. और ही मेक श्योर कि वो पूरी फैमिली के बीच में आपको इंट्रोड्यूस करता है कि दिस इज द अपार्टमेंट सोल्ड बाय हिम. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं नवीन जी. आप जाते हैं ऐसे? हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे नवीन जी. और मैं और मेरी टीम, उनको आप समझ लीजिए हर दूसरे दिन इन्विटेशन है कि यहाँ मैं ये खोल रहा हूँ, यहाँ मैं वो खोल रहा हूँ, यहाँ मैं वो खोल रहा हूँ. तो एज अ कंसल्टेंट, बिकॉज हम उनके एक समय काइंड ऑफ डॉक्टर्स रहे हैं, तो हमको उन लोग बुलाते हैं एंड दे टेल अस कि आई हैव बुक्ड दिस, आई हैव बॉट दिस. सो बहुत अच्छा लगता है एंड दैट्स अ वेरी गुड जर्नी. Elite clients. Nitin, you have mentioned one thing that a mandate. I'm just stopping you on that particular topic. What is mandate, and you people are doing the mandate kind of thing in Pune? हम लोग ने already 1-2 mandate पुराने किए हुए हैं. And now we have a complete different vision towards mandate. Okay. It's not a selling part only. It's not a volume sale. It's definitely you can say I will be the single point, or my team will be the single point for connecting between a developer and definitely the partners which work and definitely the clients. So this is a complete selling. फिर हम लोग इंटरनल स्पेक्स भी बताने वाले डेवलपर को कि कैसे क्या चीज आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो फ्रॉम योर ओन मार्केट कॉम्पिटिटर्स. सो ये सब चीजें इज अ पार्ट ऑफ मैंडेट, एंड ड्यू टू आवर एक्सपीरियंस वी कैन हेल्प देम. एंड डेफिनेटली सबको माल बेचना है नवीन जी, बाकी कुछ भी बोलिए, फटफट माल सबको बेचना है, अपने प्राइस पे बेचना है, वो सब काम हमारा है. That's great. And I just thank you, नितिन, कि आप हमारे चैनल पे आए और you have given a wonderful speech and you have shared each and every detailing. क्योंकि to be very honest, इतना डिटेल कोई नहीं बताता जिस डिटेलिंग के साथ आपने हमारे चैनल पे लोगों को अवेयर किया है कि पुणे मार्केट किस तरीके से चल रहा है. 2016 से आपने जो अपनी जर्नी, अपनी चाइल्डहुड, अपना जो गवर्नमेंट जॉब, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद एज अ वेरी बोल सकते हैं भिलाई से आप बिलोंग करते हैं और पुणे में आप जैसा वर्क कर रहे हैं और इन 9 सालों का जो एक्सपीरियंस है, fabulous. Thank you, Naveen ji, for inviting me. Thank you for having my, not advice to be very precise. Thank you for having me on this show. And definitely, Naveen ji, अब आप इतना बोले हैं तो एक टिप भी दे देता हूँ आपको कि मेट्रो से पहले आप कुछ खरीद लीजिए इधर, वरना तो ट्रेन निकल जाएगी. Thank you. Thank you. Thank you very much.